Hello everyone, welcome back to this channel. Wi-Fi, we have done the digestive tract and various glands associated with this. In this video, we will be doing the digestion and absorption of various food components like fats, carbohydrates, proteins, nucleic acids. So we will start now. Digestion. So what is digestion? Digestion. We are doing the digestion. Digestion. I told you that whatever we eat, it is not in simpler form. It might be in simpler form to some extent, like a small portion of the food may be in simpler form, but majority of that food is in complex form. So what we need to do, we need to change that complex food into the simpler form. हमें उस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना है जो कि हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाए. So we have digestion and we have absorption. This is absorption. So what happens when you have complex food and you change it into the simple food, simple nutrients or biomolecules, okay, and then you let them go to the blood, okay, and blood, yeah, yes. So this process of conversion of complex food to simple nutrients comprises the digestion part, and the how these nutrients are entering the blood. This is known as absorption. Absorption is the process by which the nutrients digested in the small intestine are absorbed into the blood. This is the absorption. So what we are going to do in this video, we are going to learn these two steps. How the starch present in our diet first converted into glucose, and then how this glucose entered the blood. Similarly, how the proteins are converted into amino acids and how these amino acids are entering the blood. How the fats are converted into the fatty acids and how these fatty acids are entering the blood. However, they don't enter the blood, they enter the lymph. So we will also study that. So how are they entering this blood or connective tissue? So this is what we are going to do in today's video. So डाइजेशन के बारे में बात करते हैं. डाइजेशन जो है वो दो तरह से होता है. एक तो मैकेनिकली भी होता है, जैसे मैकेनिकल डाइजेशन बाय द टीथ से हम ग्राइंड करते हैं उसको. हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इवन उसमें भी जो स्टमक है वो चर्निंग करता है, तो वो भी मैकेनिकल डाइजेशन. केमिकल प्रोसेस इज बाय द एंजाइम्स. सो अगर हम बात करते हैं कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, तो सबसे पहले खाना किस में जाता है? माउथ में, राइट. तो माउथ में टिथ क्या करते हैं? उसको टिथ तो उसको बाइट करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, राइट, चर्न करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं. सलाइवा ऐड होता है. सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा का कॉन्सेंट्रेशन बोले तो इसका 99% से भी ज़्यादा जो है इसमें वाटर है. देन इसमें एक एंजाइम होता है, टाइलिन बोल लो या सलाइवरी अमाइलेज बोल लो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम. And this enzyme is responsible for 30% of fat digestion. Okay, so this is very important. And what the other thing that saliva has, it has lysozymes. What do lysozymes do? It kills bacteria. If any bacteria or foreign particle enters our body, then enters our meal, our mouth with the meal, then these lysozymes secrete certain enzymes which these lysozymes are themselves enzymes, so they kill the bacteria. Okay, then we have some ions like sodium ions, chloride ions, potassium ions, bicarbonate ions. So these also having certain function like sodium chloride ions. They are involved in the activation of this salivary amylase. Bicarbonate ion helps in buffering the acidic food. So yeah, so this is what the saliva is composed of. Now what happens when the food enters the saliva? I should show it with a diagram. So for a rough, just telling you the pathway of food and how is it being processed. We will study the chemical digestion mode here. So if this is the food pipe,
So this is something like, and here goes the, yeah. So this is how our digestive system looks like. So सबसे पहले खाना जाएगा माउथ में क्या हुआ, पहले तो टीथ ने इनको ग्राइंड किया, सलाइवा मिक्स हुआ विद द हेल्प ऑफ टंग सलाइवरी ग्लैंड में, तो सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा। अब खाना जो है आ जाता है, उसके बाद आफ्टर देखो जब खाना जो है फूड प्लस सलाइवा मिक्स हो गया उसमें, तो खाने को हम बोल देते हैं बोलस, यू ऑल नो दैट, ओके। बोलस जो है वो नीचे जाता है इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस में इस तरह से, जैसे ये लेट मी, इसोफेगस में एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, वेवी कॉन्ट्रैक्शंस है, वेवी कॉन्ट्रैक्शंस है। क्या होता है कि खाने को जो है प्रोपल करने के लिए, आगे प्रोपेल करने के लिए इस तरह की मूवमेंट होती है कि सर्कुलर मसल्स और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना के ऑफ द गट that contract and relax to move that food forward into the alimentary canal। तो जैसे ये हमारी एलिमेंट्री canal और यहाँ फूड है, तो ये क्या करेगा, ऐसे अंदर को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ये खाना यहाँ पे है। अब ये खाना क्या हुआ, जब जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुई दोनों साइड से, तो ये खाना आगे को मूव करेगा, तो क्या होता है कि खाना जो है यहाँ आ जाता है अपनी पुरानी पोजीशन से थोड़े आगे आ जाता है, एंड देन फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि खाना जो है वो आगे आगे पुश हो। तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन को जो कि वेव लाइक ऐसे फॉर्म हुई, देन रिमूव, फॉर्म हुई, रिमूव, एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इज नोन एज द पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस से खाना जो है प्रोपेल होता है नीचे, देन स्टमक में जाता है, स्टमक में भी चर्निंग होती है, स्टमक में भी पेरिस्टालिसिस की तरह मूवमेंट होती है, तो उसकी खाने को चर्न किया जाता है, इसे मैकेनिकल डाइजेस्ट भी होता है। अब देखो जो टंग थी उसने लिंगुअल लाइपेज भी किया था, सीक्रेट किया था, तो लिंगुअल लाइपेज भी फैट डाइजेशन में एक मिनिमल रोल प्ले करता है, दैट वी डोंट जनरली डिस्कस। सो स्टमक में गया, स्टमक में एंजाइम सीक्रेट हुए, तो स्टमक से नीचे आ गया खाना थ्रू द duodenum। In the duodenum it will receive the secretions of both pancreas and the liver, and then the food will move into the this small intestine, it will like propel in the small intestine। so small intestine में segmental movements होती हैं, segment उसकी एक एक segment से जो है खाने को propel करने के लिए segmental movement होती है। then in the large intestine when the यहाँ पे क्या होता है, ileocecal valve होता है, राइट। तो खाना जब ये एक एक हॉस्ट्रा है, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को हॉस्ट्रा कहते हैं, देन यहाँ से भी हॉस्ट्रल चर्निंग होती है, खाने को अच्छी तरह चर्न किया जाता है, और भी बहुत तरह की मूवमेंट्स होती है इंटेस्टाइन में, एंड देन खाना जो है फाइनली रेक्टम में आता है, और रेक्टम में डेफिकेशन के थ्रू बाहर निकलता है। दिस इज ओवरऑल ऑफ हाउ द फूड मूव्स इन आवर जीआई ट्रैक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिकली हाउ द लेट मी स्टार्च इज डाइजेस्टेड। ओके, तो सबसे पहले हमने खाना खाया, तो सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है। सलाइवरी अमाइलेज का एक वेरी इंपॉर्टेंट पीएच याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है 6.8 पीएच, दिस इज इट्स ऑप्टिमम पीएच। तो फूड जैसे स्टार्च आया, तो ये स्टार्च के ऊपर जो है सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा। कहाँ पे, ओरल कैविटी में हो रहा है ये सब, कहाँ पे हो रहा है, ओरल कैविटी में। और ये जो है स्टार्च, इसको माल्टोज, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, ओके। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। सो माल्टोज में जो है स्टार्च को कन्वर्ट करता है दिस सलाइवरी अमाइलेज। डाइसैकेराइड का मतलब दो मोनोमर से बना हुआ, दीज आर द मोनोसैकेराइड। बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चल जाएगा मोनोसैकेराइड क्या होता है। दिस इज आल्सो मोनोसैकेराइड, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनी और दोनों जुड़ के एक डाइग्लिसराइड बन जाए, वैसे ही तीन हो जाए मोनोसैकेराइड बन जाए, दोनों मिलकर डाइसैकेराइड हो जाए, और तीन हो जाए तो ट्राइसैकेराइड। ऐसे ही डेक्स्ट्रीन्स होते हैं जो कि एक ऐसे इंटरमीडिएट होते हैं स्टार्च डाइजेशन के, वैसे स्टार्च होता है। और
या सो ये हो गया माल्टोज में सम स्टार्च। कितना स्टार्च भैया? 30% स्टार्च जो है ऐसे डाइजेस्ट होता है। ये खाली ओरल कैविटी में हो रहा नहीं, ये हमारे स्टमक में भी होता है। अच्छा, स्टमक में जाके इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है क्योंकि इसको पीएच चाहिए 6.8। अब स्टमक में जब खाना पहुंचेगा, जब खाना स्टमक में पहुंचा तो वहां क्या रिलीज होता है? HCl आएगा। तो HCl जो है पहले ही रिलीज नहीं हो जाता, पहले खाना थोड़ी देर स्टमक में आता है, यहाँ पे उसकी वॉल्स को स्ट्रेच करेगा और देन बहुत सारे इम्पल्सेस जनरेट होते हैं जो कि HCl को सीक्रेट करवाते हैं। तब तक जब तक HCl सीक्रेट ना हो तब तक ये सलाइवरी अमाइलेज काम करता रहता है। तो ये नहीं स्टमक में सलाइवरी अमाइलेज की एक्शन स्टॉप होती है, हाँ स्टॉप होती है, लेकिन immediately after it reaches the stomach it doesn't stop immediately, but it takes some time until the HCl is secreted into the stomach. The salivary amylase keeps on working, it keeps on converting the starch into maltose. Okay, now the remaining 70% starch, where would that starch go? 70% जो बच गई स्टार्च खाने में वो कहाँ जाएगी? तो अब ये खाना जो है स्टमक के बाद कहाँ पे आता है? स्टमक के बाद आता है टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये आता है इनटू द डिओडिनम। तो डिओडिनम में किसकी सीक्रेशन रिसीव हुई? पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आया। जब यहाँ स्टमक से दिस इज नॉट अ राइट वे टू ड्रॉ। सो दिस इज द स्टमक। ओके, स्टमक से जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या था? पैनक्रियाज, राइट? दिस इज द डिओडिनम। अब पैनक्रियाज से आता है एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है इस खाने पे एक्ट करता है। तो अब क्या होगा? स्टार्च पे क्या एक्ट करेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज इसको किसमें करेगा? डाइसैकेराइड्स में तोड़ता है। डाइसैकेराइड्स कैसे हुए? जैसे माल्टोज है वैसे और भी डाइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स में क्या क्या आता है? जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है, और क्या होता है? सुक्रोज है। इनको बोलते हैं डाइसैकेराइड। सारे दो दो यूनिट से बने हुए हैं, मोनोमर्स ऐसे करके दो मोनोमर्स जुड़ के बने हुए हैं। तो ये स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। अब ये डाइसैकेराइड्स को जो है, डाइसैकेराइड तो अब्जॉर्ब नहीं होंगे ब्लड में, हमें किस में कन्वर्ट करना? हमारा अल्टीमेट एम जो है स्टार्च को मोनोमर में, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है। ओके, दिस इज व्हाट आर एम इज, मोनोसैकेराइड। तो हम डाइसैकेराइड क्या होता है कि अब हमने सुना था कि जो इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं वो आधे अब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लाइक दिस, जो कि माइक्रोविलाई को बना रहे हैं, है ना? ये जो था ये क्या बना रहा था? माइक्रोविलाई। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें कुछ ऐसे ब्लर सा दिखता है, ऐसे ऐसे ब्रश के तारें दिखती है ना, या ऐसे ब्रश होता है कोई, तो हम इसको बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर। ये जो अब्जॉर्प्टिव सेल का ब्रश बॉर्डर होता है, इस ब्रश बॉर्डर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। यही ब्रश बॉर्डर के एंजाइम्स प्लस म्यूकस। म्यूकस कहाँ से आया? एंजाइम, जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है गॉबलेट सेल्स होते हैं। तो ये म्यूकस प्लस ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बनाते हैं हमारा सक्कस एंटेरिकस। दीज एंजाइम्स प्लस म्यूकस फॉर्म द सक्कस एंटेरिकस। वेरी इंपॉर्टेंट। सक्कस एंटेरिकस में जो है ये डाइसैकेराइडेजेस होते हैं, डाइसैकेराइडेजेस। डाइसैकेराइडेजेस क्या होते हैं? वो एंजाइम जो इन डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। दिस इज वेयर आवर डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड। तो हमने क्या पढ़ा? बेसिकली हमने पढ़ा कि जो स्टार्च है सबसे पहले वो ओरल कैविटी में आता है जिसमें सलाइवरी अमाइलेज उस पे एक्ट करेगा एट द pH 6.8 and it would get converted into maltose which is a disaccharide. Now after the maltose is not all the starch has been converted into maltose. Some of the starch, like 70% of the starch is left unreacted with that salivary amylase. अब वो जो 70% starch बच गया उस पे एक्ट करता है pancreatic amylase. This pancreatic amylase from the pancreatic juice, it acts on the remaining 70% starch and convert it into respective disaccharides. Disaccharides में convert करेगा। अब ये disaccharides तो blood में जा नहीं सकते डायरेक्टली, तो इन disaccharides पे एक्ट करते हैं disaccharidases. Disaccharidases एंजाइम कहाँ से आए? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर है उनके एंजाइम्स जो है
उनमें डाइसैकेराइडेजेस होते हैं, ये डाइसैकेराइडेजेस इन मोनोसैकेराइडेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लैक्टोज, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज से और एक गैलेक्टोज से। तो भैया ग्लूकोज और गैलेक्टोज ने मिलके लैक्टोज बना दिया। सुक्रोज किसका बना होता है? सुक्रोज, जस्ट 1 सेकेंड, या सो लैक्टोज इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज बना होता है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, और माल्टोज जो है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। ओके, सो दिस इज हाउ द इज डाइसैकेराइड। सो मोनोसैकेराइड्स मींस अगर ये एक लैक्टोज है तो इसका डाइसैकेराइड का नाम भी चेंज हो जाता है। ये जो एंजाइम है ना, इसका नाम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? लैक्टोज, तो इसका नाम हो जाता है लैक्टेज। जहां भी एएसई एंड में हो तो वो एक एंजाइम होता है जो इसको डिग्रेड करता है। तो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? एक ग्लूकोज में और एक गैलेक्टोज में। ये दोनों भैया मोनोसैकेराइड है, हमारा डाइजेशन का काम कंप्लीट हुआ। अब इनको ब्लड में लेके जाना वो एब्जॉर्प्शन का काम है। अब भैया सुक्रोज आया तो सुक्रोज के लिए हमने नाम बदल दिया एंजाइम का, अब इसका नाम क्या रख दिया? सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा? फ्रक्टोज में चेंज करेगा इसको और ग्लूकोज में करेगा, राइट। और यहाँ माल्टोज जैसे इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो माल्टेज होगा। सो दिस इज हाउ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में लिखा है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, या हाँ, जो खाना जो हमने माउथ से माउथ टू ईसोफेगस या फेरिंग्स में जो खाना लेके गए तो वो हम स्वेलो करते हैं ना, अपनी भाषा में बोलते हैं खाना निगलना। तो उस प्रोसेस, उसका एक साइंटिफिक नाम है डीग्लूटेशन, इंपॉर्टेंट है, ओके। और खाना जब, ये देखो, जब बोलस जो है स्टमक में जाता है तो गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं उसमें, राइट, गैस्ट्रिक जूसेस। तो उस खाने को हम बोल देते हैं काइम। इंपॉर्टेंट टर्म्स बोलस, काइम और डीग्लूटेशन और सलाइवेशन, ये जो स्वेलो। तो यहाँ लिखा है द प्रोसेस डाइजेशन इज इनकम्प्लीट बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। बक्कल कैविटी के दो ही काम है, सबसे पहले खाने को मैस्टिकेट करना और स्वेलोइंग को फैसिलिटेट करना। और भी काम है भैया इसका कि सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, यू नो, द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। म्यूकस भी होता है सलाइवा में जो हेल्प करता है खाने को लुब्रिकेट करने में, और फूड विद द म्यूकस विद द सलाइवा इज नोन एज बोलस। द बोलस जो है कन्वर्ट किया जाता है फेरिंग्स में और इसोफेगस में बाय द प्रोसेस स्वेलोइंग, जिसको साइंटिफिकली डीग्लूटेशन बोलते हैं। बोलस जो है बाय द वेव ऑफ बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने क्या बताया था? पेरिस्टालिसिस। और गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कौन सा है? ये कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि लोअर बेस पे क्या है? At the lower end of the esophagus, there is a sphincter that regulates the passage of food from the food pipe into the stomach. तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमने पढ़ लिया। अब ये पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है, जैसे स्टार्च। डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन क्या है? जो ग्लूकोज अप टू 9 रेजिड्यू से बने हुए हैं। डाइसैकेराइड्स होता है लैक्टोज, जिसे मिल्क शुगर कहते हैं और बना होता है ग्लूकोज और लैक्टोज से। सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज के 2 यूनिट से बना होता है। मोनोसैकेराइड्स में जिनमें हमें कन्वर्ट करना, हमारा काम है इस पॉलीसैकेराइड्स को इस मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना, यही डाइजेशन है। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आर द मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि द केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओवरल कैविटी। भाई कौन सा एंजाइम था? सलाइवरी माइलेज। 30% डाइजेशन यहीं पे हो जाती है। और क्या स्टार्च को किसमें डाइजेस्ट किया जाता है? माल्टोज में, ठीक है। लाइजोजाइम्स जो है वो किल करते हैं बैक्टीरिया को, एंटीबैक्टीरियल हैं। अच्छा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स वहीं जो सक्कस एंटेरिकस बताया, वो जो है उनमें क्या होते हैं? डाइसैकेराइडेजेस होते हैं। और ये डाइसैकेराइडेजेस क्या करते हैं कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, जैसे माल्टोज है तो इसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इस पे क्या लगेगा? माल्टेज। कहां से आया? फ्रॉम द सक्कस एंटेरिकस। तो यही लिखा हुआ है कि या एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट टू फॉर्म द माल्टोज पे माल्टेज, ग्लूकोज बन गया, लैक्टोज पे लैक्टोज, लैक्टोज सुक्रोज पे। आई होप डाइजेशन इज क्लियर टू यू। नाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एनसीईआरटी में जो अब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन दिस वे कि उसने जो है
एक ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ही बहुत तरह से दिखा दिया होगी। ग्लूकोज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है। तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे बुक्स वाला पढ़ रहे हैं। हालांकि जो एग्ज़ाम है वहाँ पे एनसीईआरटी की मानी जाएगी, एनसीईआरटी को भी पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा ट्राई करते हैं। देखो जो फ्रक्टोज होता है, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि जहाँ पे हमें एक, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, ऐसे बाई लेयर होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, लिपिड बाई लेयर, राइट। तो इसके बीच में यहाँ से अगर ये सीधा नहीं जा पा रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक रास्ता बनवा दूँ, एक रोड बना दी भाई तू जा यहाँ से आराम से। तो मैंने इसको क्या दी, एक फैसिलिटी दी, फैसिलिटेट किया। तो जब कोई एक कैरियर प्रोटीन, एक कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए जो कि किसी मॉलिक्यूल को रास्ता दे दे कि भाई तू यहाँ से निकल जा, अगर तुझे साइटोसोल में जाना है, साइटोसोल समझ रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम बोल देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एफ फॉर फ्रक्टोज और एफ फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फ्रक्टोज जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से सेल में जाता है, देन अगेन वहां से सेम तरीके से ब्लड में चला जाता है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज का क्या सीन है भैया। ग्लूकोज जो है एनसीईआरटी में हालांकि लिखा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो आप दिख रहे हैं, पहले यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले सेल के अंदर जो सोडियम आइंस होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, ताकि अंदर सोडियम साइन की कमी हो, लो सोडियम आइंस चाहिए हमें अंदर, ठीक है। तो सोडियम आइंस तो बाहर निकाला जाता है। तो देखो सोडियम आइंस तो ऐसे तो बाहर निकाल नहीं सकते सेल से, तो एक स्पेशल एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है जिसको सिंपोर्टर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप, एटीपी एज पंप। ये क्या करता है, एटीपी को यूज करता है। जैसे यहाँ पे इसने एटीपी का इस्तेमाल किया, इसको एटीपी दी, और इसने क्या किया, सोडियम को बाहर निकाला, उसके बदले में पोटाशियम अंदर। अब क्या हुआ, अंदर सोडियम की कमी हो गई। सोडियम की कमी होने की वजह से ये है हमारा गट, गट का ल्यूमन, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर यह स्मॉल इंटेस्टाइन मानो, और यहाँ पे है ब्लड वेसल, ओके। तो ये वहीं दिखाया गया है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेल है, ये जो दिखाया जा रहा है ना, इसको बोलते हैं एंटेरोसाइट भी बोल देते हैं, या एपिथेलियल सेल्स बोल लो। तो ये एपिथेलियल सेल क्या करता है कि अब सोडियम आयन के अंदर कमी हुई तो ये ट्रांसपोर्टर होता है, ये सोडियम को अंदर लेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ही तो चीजें मूव हो रही हैं। तो सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम है, सोडियम अंदर चला गया, और सोडियम अंदर चला गया तो ये अकेला नहीं जाता, ये सिम्पोर्टर के थ्रू जाता है। तो इसको एक और मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, चाहे वो ग्लूकोज हो या गैलेक्टोज। तो इस तरह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी अंदर चले जाते हैं, और बाद में एक बार सेल में आ जाए तो यहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से निकल जाते हैं ब्लड में। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी चाहिए, डायरेक्ट एटीपी नहीं चाहिए। एटीपी कहाँ चाहिए थी, यहाँ पे चाहिए थी, वहां पे तो एटीपी का काम नहीं। लेकिन हालांकि इसी के ट्रांसपोर्ट को अल्टीमेटली हमें करना है, तो उसी लिए उसको एटीपी दी गई, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसने एटीपी यूज नहीं की, लेकिन इसको अंदर लाने के लिए जिस पंप की जरूरत थी उसने एटीपी यूज करी, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने याद क्या रखना है बेसिकली यहाँ पे कि फ्रक्टोज जो है वो अब्जॉर्ब होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, जो हमारा ग्लूकोज है वो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं जब, हाँ। फैसिलिटेटेड भी एक का किस्म से कह सकते हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में फैसिलिटेटेड भी दिया गया है। तो फैसिलिटेटेड भी अगर आएगा तो लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी को ही बाइबल माना जाए, या फिर कहें तो एनसीईआरटी को ही एक जजमेंट जब करनी होती सही है गलत, तो एनसीईआरटी को देखा जाता है, तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है। लैक्टोज जो है वो भी इसी तरह से। तो पीछे पढ़ लेते हैं, अब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस, जिसमें डाइजेशन के पास जो है इंटेस्टिनल म्यूकोजा से ब्लड में जाए, उस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। पैसिव से भी हो जाता है, पैसिव मतलब कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई वो कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, जस्ट डिफ्यूजन, बेसिकली डिफ्यूज हो रहा है। एक्टिव एटीपी का इस्तेमाल किया जाए तो उसको एक्टिव बोल देते हैं, और फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ, छोटा सा अमाउंट जो ग्लूकोज का है,
हम अमाइनो एसिड की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वो सिंपल डिफ्यूजन से चला जाता है। फिर बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, लेकिन कैरियर प्रोटीन की मदद से भी हम जो है ग्लूकोज को आप कर सकते हैं, यदि एनसीईआरटी बोल रहा है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसके केस में ग्लूकोज में उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोल दिया हुआ है, सो हमने प्रेफरेंस देनी है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। ओके, आज प्रोटीन पे आ जाते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन पे। तो प्रोटीन डाइजेशन, देखो प्रोटीन डाइजेशन के बारे में याद रखना, प्रोटीन डाइजेशन पहले तो स्टमक में स्टार्ट होती है। स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है? चीफ सेल्स पढ़े थे ना, चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करते थे? प्रोरेनिन, सॉरी प्रोरेनिन नहीं, पेप्सिनोजन। प्रोरेनिन भी करते हैं पर चीफ सेल नहीं। तो पेप्सिनोजन, राइट, सीक्रेटेड बाय चीफ सेल्स, इनएक्टिव फॉर्म है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए 1.8 pH चाहिए, जो कि आता है HCl से। HCl कौन सीक्रेट करता है? पैराइटल सेल्स, राइट। सो पैराइटल सेल जब HCl सीक्रेट करेंगे तो उससे जो है ये पेप्सिनोजन जो है एक्टिव हो जाता है इनटू द पेप्सिन। ये पेप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, जैसे प्रोटीन है तो इसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स, प्रोटीएजेस, ऐसे पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। बट आर दिस, देखो जब भी हमें ऐसे अमाइनो एसिड की चेन है, राइट, ये अमाइनो एसिड की चेन है, अमाइनो एसिड की चेन है, अमाइनो एसिड, तो इसमें जब कट लगेगा, मान लो हमने पैप्सिन किया तो पैप्सिन क्या कर रहे हैं? बॉन्ड्स को तोड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ से तोड़ रहे हैं तो कुछ इतने सारे अमाइनो एसिड के प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ इस तरह से लंबे बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ उससे भी लंबे बनेंगे। तो इनको अलग अलग नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कि कितने अमाइनो एसिड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ पेप्टाइड होंगे जो छोटे होंगे, प्रोटीएज होंगे, पेप्टोन्स होंगे। तो बस ये वही है कि इंटरमीडिएट्स हैं प्रोटीन डाइजेशन के। तो सिंपली याद रखना ये क्या है? इंटरमीडिएट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसके ये कंपोनेंट है। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन डाइजेशन, अच्छा पेप्सिन ने कर दिया। अब हमने कहीं पढ़ा था कि ट्रिप्सिन भी नाम की चीज होती है, काइमोट्रिप्सिन नाम की चीज होती है, राइट। प्रो इलास्टेज होता है, राइट, अमाइनो पेप्टाइडेज, या तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है। कहाँ से आ रहे थे ये एंजाइम? अगेन फ्रॉम द पैंक्रियाज। तो स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हुई, लेकिन इतनी जो है उसमें पेप्सिन ने इनको इतने में कन्वर्ट करा। अब ये एंजाइम ट्रिप्सिन, देखो ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, काइमोट्रिप्सिनोजन सीक्रेट होता है। ट्रिप्सिनोजन अगेन जैसे पेप्सिनोजन था, ये भी क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ चाहिए, जैसे वहाँ HCl चाहिए था, यहाँ पे चाहिए होता है एंटेरोकाइनेज से, या एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है। एंटेरोकाइनेज कहाँ से आया? वही ब्रश बॉर्डर एंजाइम, जो ब्रश बॉर्डर है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसमें एंटेरोकाइनेज होता है। ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। भैया ट्रिप्सिन अब खुश है कि भैया पहले क्या था ये सैड, क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं था, अब ये एक्टिवेट हो गया, इसके पास बिजली आ गई। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? अब ये ट्रिप्सिन जो है पहले खुद नहीं जाएगा, ये करेगा क्या? ये बोलेगा कि मेरे जो बाकी भाई हैं काइमोट्रिप्सिन, प्रो इलास्टेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये बोलेगा कि तुम लोग क्यों वैसे बैठे हो? काइमोट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा ये? काइमोट्रिप्सिनोजन इसको बोलेगा कि तू ये जन हटा दे, तू इनएक्टिवेट क्यों है, तू भी एक्टिवेट हो जा, तो ये काइमोट्रिप्सिन बना देगा। वैसे ही प्रो इलास्टेज को इलास्टेज बना देगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बना देगा। अब ये सारे एंजाइम्स जो हैं यहाँ पे देखो, अब ये सारे एंजाइम्स जो हैं इन प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीज, पेप्टाइड, इन सबको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। डाइपेप्टाइड्स क्या है? दो अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है। इस तरह के स्ट्रक्चर को डाइपेप्टाइड्स, जैसे डाइसैकेराइड था वैसे डाइपेप्टाइड्स। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं शुरू में, फिर देखेंगे ये डाइपेप्टाइड्स कैसे जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। उसके लिए भी सेम फंडा है कि जो हमारा सक्कस एंटारिकस था, सक्कस एंटारिकस था, लेट मी यूज अनदर पेन।
अच्छा, इसके बाद क्या था, सक्कस एंटारिकस आया। उसने ये सारे डाइपेप्टाइड्स को, मोनोपेप्टाइड नहीं कहते हैं, अमाइनो एसिड कहते हैं, तो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लिया, अब ये ब्लड में जाएंगे। तो ओवरऑल हिस्ट्री क्या है प्रोटीन डाइजेशन की, इफ यू ट्राई टू लिसन, तो ओवरऑल हिस्ट्री ये है प्रोटीन डाइजेशन की। प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन वाज फर्स्ट secreted in the inactive form, which is pepsinogen. Pepsinogen was activated by the acidic activity of the HCl, which gives at the pH 1.8. तो ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना। पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को प्रोटीन डाइजेशन इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट किया, जैसे पेप्टाइड, प्रोटीज, पेप्टोन्स में। अब ये जो हैं आगे बढ़ते हैं, जब तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास की सीक्रेशन होती है। पैंक्रियास के सीक्रेशन में, पैंक्रियाटिक जूस में, इनको और एंजाइम्स मिलते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, लेकिन तभी ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स में से एक एंटारोकाइनेज आता है, वो बोलता है भाई तुम लोग इनएक्टिवेट क्यों हो, तुम्हारी जरूरत है। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये ट्रिप्सिनोजन जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, तो ये ट्रिप्सिन जो है अपने 3 बाई जो बाकी के हैं, मोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इनको बोलता है तुम लोग भी जागो और चलो मिलके काम करते हैं। अब ये चारों मिलके काम करते हैं, और सारे जो प्रोटीन के इंटरमीडिएट्स थे जो पहले स्टमक में बने, उन सबको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। वो सारे डाइपेप्टाइड्स, अब उन डाइपेप्टाइड्स को भी अमाइनो एसिड में बनना है, तो एक तीसरा बाइंग का, जैसे ब्रश बॉर्डर एंजाइम कौन सा था, एंटारोकाइनेज, वैसे ही सक्कस एंटारिकस में जो है इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम जो होते हैं, जो कि डाइपेप्टाइडेज बोलते हैं उसको, वो इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आइए ये समझते हैं। प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुई। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, जब HCl आया तो वो पेप्सिन बन गया। अब पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को प्रोटीजेज और पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। म्यूकस क्या बोले, इसका मतलब क्या है कि देखो, जब खाना आएगा स्टमक से तो वो एसिडिक होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को, वॉल को क्या करेगा, हार्म करेगा। तो पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे क्या होते हैं, बाइकार्बोनेटाइंस होते हैं, पढ़ा था। ये बाइकार्बोनेटाइंस क्या करते हैं, इसको बफर करते हैं एसिडिक फूड को, ताकि जो है उसका म्यूकस लेयर जो है वो डिटेरियोरेट ना हो। तो यही लिखा हुआ है कि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। वैसे ब्रूनर ग्लैंड होते हैं, ब्रूनर ग्लैंड पढ़ा था ना, तो ब्रूनर ग्लैंड का भी क्या काम था, उनका भी यही काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट करें, ताकि जो HCl है वो म्यूकोसा की वॉल को वो हार्म ना कर पाए। यही लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है HCl प्रोवाइड, ये pH 1.8। रेनिन जो है ये मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। ये क्या करता है, कैजीन नाम का एक एंजाइम होता है मिल्क में, इसको, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोकैजिनेट में आई जैसे, या तो कैजिन नाम का एंजाइम है, उसको कन्वर्ट करने की, उसको अच्छा डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन एंजाइम जो है बच्चों के पेट में होता है, ये रेनिन मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ओके, द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये बाकी अभी काम के नहीं है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटारोकाइनेज व्हिच इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ओके, इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन। तो एंटारोकाइनेज कहाँ से है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से, वहीं म्यूकोस लेयर जो है उसके सेल्स जो है वो सीक्रेट करते हैं, जो कि पैंक्रियाटिक जो उसमें प्रोटीन्स, पेप्टोन्स जो बने अब काइम में, तो वो इंटेस्टाइन में आए और उन पर पैंक्रियास से जो है ये सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे, तो ये डाइपेप्टाइड बन गए। अब ये डाइपेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइडेज फ्रॉम सक्कस एंटारिकस, ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब अमाइनो एसिड्स का कैसे अब्जॉर्प्शन होता है, अमाइनो एसिड का अब्जॉर्प्शन बेसिकली, इसका भी अब्जॉर्प्शन जो है जो खाली डाइपेप्टाइड क्या होंगे, ये वाले ट्राइपेप्टाइड क्या होंगे, ये सिंगल अमाइनो एसिड है तो 2 हो जाएंगे डाइपेप्टाइड। तो जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम आयंस। सोडियम आयंस मतलब वहीं की, यहाँ पे सोडियम आयंस तो पहले बाहर निकाला जाएगा, है ना। सोडियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर होंगे तो अंदर क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, पोटाशियम को अंदर लाया जाएगा, और यहाँ पे क्या यूज होगी, एटीपी, एटीपी लेगा ये एनर्जी। तो अब ये सोडियम आइंस की कमी को पूरा करने के लिए अंदर क्या चाहिए, अंदर जाएंगे सोडियम आइंस, तो अकेले तो नहीं जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को भी ले जाएंगे कि भाई तू भी चल। तो अमाइनो एसिड अंदर आ गया, अब अंदर से बाहर जाने में क्या ही दिक्कत है। तो इस तरह के डिफ्यूजन को, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर अमाइनो एसिड भी आएगा तो प्रेफर करेंगे कि वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। ओके,
फिर डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स वो जो है जैसे वो सोडियम आयन के साथ गया कि सोडियम आयन अंदर गया, तो ये किसके साथ जाएंगे, ये H पॉजिटिव आयन से जाएंगे, पर अगेन उसके लिए भी एटीपी वैसे ही सेम रोल। तो दोनों जो हैं पेप्टाइड्स जो हैं, प्रोटीन का कोई भी प्रोडक्ट हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है। एनसीईआरटी क्या बोली है, एनसीईआरटी बोली है सम अमीनो एसिड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड by the specific transporter, some other are transported by secondary active transport। अब सोडियम आइंस का याद रखना है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाँ ये पीछे दिया हुआ था आई गेस, some या इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्जर्व बाय दिस प्रोसेस। सोडियम आइंस जो है वो यहाँ पे दिखाया गया, सोडियम आइंस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो क्लोराइड आइंस है वो पैसिव डिफ्यूजन से हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो हमने ये पढ़ा कि सोडियम आइंस अंदर जा रहे हैं तो एटीपी यूज हो रहा है, तो सोडियम आइंस जो है वो एटीपी कंज्यूम करके ही अंदर जाते हैं। सम डाइपेप्टाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद दिस इज अनदर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं ये सारी। या एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि small amount of amino acids are absorbed by simple diffusion or facilitated diffusion, the passage of these substance into however some substance like some amino acid is also transported by facilitated transport, active transport like nutrients। so एनसीईआरटी तो सब चीजों में खेल रहा है हर चीज को, ओके। तो इससे हमारा ये खत्म हुआ। अब डाइजेशन ऑफ फैट्स की बात करते हैं। फैट्स की डाइजेशन थोड़ी सी अलग है सबसे, क्योंकि फैट जो है ये ऐसे हैं कि ये वाटर इनसॉल्यूबल है, और जो इंजाइम्स फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए वो सारे वाटर सॉल्यूबल हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा वाटर सॉल्यूबल काइंड का बनाया जाता है। तो फैट डाइजेशन में क्या पढ़ेंगे कि बाइल जो है लीड्स टू बाइल साल्ट्स होते हैं उसमें। ये बाइल साल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस बाइल साल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल हेल्प इन मल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को मल्सीफाई करता है। वहीं तो फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। तो आई थिंक फैट डाइजेशन, यहाँ फैट्स की बात करते हैं। फैट डाइजेशन की बात करें तो पहले सबसे पहले माउथ में आता है लिंगुअल लाइपेज आ जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी था, चीफ सेल सीक्रेट कर रहे थे ना, राइट। लिंगुअल लाइपेज फ्रॉम द टंग, टंग के ऊपर जो ग्लैंड्स होंगे वो, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ से है, चीफ सेल से। पर गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो एडल्ट्स में कम एक्टिवेट होता है, इन इन्फेंट्स में होता है, इनमें ज़्यादा एक्टिवेट होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, हम में कम ही होता है एडल्ट में। तो ये सब जो हैं ये लाइपेज भी फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन टू अ स्मॉल एक्सटेंट। इनसिग्निफिकेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियास। सो पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या होता है, फैट्स को या तो मोनोग्लिसराइड, अच्छा फैट का स्ट्रक्चर, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइग्लिसराइड बता रहा हूँ, ये ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, ग्लिसरॉल बैकबोन। इसके साथ तीन फैटी एसिड्स ऐसे से जुड़े होते हैं, फैटी एसिड नंबर 1, एक ये दूसरा, ये तीसरा, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। अच्छा अगर ये बैकबोन रहे तो उसके साथ एक एक फैटी एसिड हटा दो, ओके। तो ये इसी को हम बोल दे, यहाँ पे ओ अच्छा आ जाता है, तो इसी को हम बोल देते हैं डाइग्लिसराइड। और एक और हटा दो, खाली एक रहने दो, तो इसको हम बोल देते हैं मोनोग्लिसराइड। वो भी हटा दो तो ये जो खाली चेन्स उतर रही हैं इनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स, यही फैटी एसिड्स हैं। और ये जो जो पीछे बैकबोन बची ये है ग्लिसरॉल। तो ये जो है ये सारे एंड प्रोडक्ट है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब हैं जो एंड प्रोडक्ट होंगे फैट डाइजेशन के। तो फैट डाइजेशन के बारे में यहाँ से ही पढ़ लेते हैं, यहाँ ही पढ़ते हैं कि फैट्स पे लाइपेज एक्ट करता है, लाइपेज एक्ट करेगा तो डाइग्लिसराइड बनेंगे, डाइग्लिसराइड पे भी लाइपेज एक्ट करेगा तो मोनोग्लिसराइड बनेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन के आ रहा है, हमारे पास बन के आ रहा है जैसे ये है, तो एक तो ये बन रहे हैं डाइग्लिसराइड और एक बन रहे हैं
मोनोग्लिसराइड, और फ्री फैटी एसिड्स जो हैं वो जो अलग हो जाए वो बात अलग, ठीक है। अब इन पे जो है एक्ट करता है पैंक्रियाटिक लाइपेज फिर से, और पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, इनको फ्री फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ओके, सो फैट्स का डाइजेशन में कुछ वो नहीं है कि ज़्यादा है। फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो, हाँ, इमल्सिफिकेशन बढ़ते हैं। फैट का ड्रॉपलेट है ये बहुत बड़ा है, तो इसको पहले चर्निंग होता है, स्टमक भी जो है और इंटेस्टाइन की वॉल्स वो काफ़ी ही मैकेनिकल चर्निंग करती है इस चीज़। लेकिन क्या होता है, जैसे ये चर्न होता है ये फिर से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये आपस में एग्रीगेट करके फिर से बड़े बन जाते हैं। तो इनको इस चीज़ से रोकने के लिए, एग्रीगेशन से लार्जर ड्रॉपलेट अगेन बढ़ने, तो क्या होता है, बाइल साल्ट्स आते हैं। बाइल साल्ट्स कैसे होते हैं कि इनका जो है, बाइल साल्ट्स का एक पार्ट जो है, जैसे ये एक पार्ट दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इवन बाइल में जो है जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, फोस्फोलिपिड समझते हैं, ऐसे होते हैं, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, और ये होती है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक मीन्स जो पानी को लव करे, फिलिक का मतलब लव, फोबिक मीन्स जो पानी से फियर करे। तो जो लव करेगी वो पानी की साइड रहेगी, मतलब इंटेस्टाइनल जो भी फ्लूइड है उसकी तरफ रहेगी, और जो हाइड्रोफोबिक है जो पानी से डरती है वो बीच में कहीं रहेगी जहां पे पानी ना पहुंच सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इन फैट ड्रॉपलेट्स, जब छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स टूटते हैं तो इन पे जो है आके ऐसे करके ये सारे जो है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो हाइड्रोफिलिक जो है बाहर की तरफ आ जाता है, जैसे ये, एक मिनट, लेट मी ड्रा इट इन पिक्चर सर्फ, या, सो अगर ये फैट के ग्लोब्यूल है, ओके, तो ये क्या करेगा कि ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये ऐसे करके इसके ऊपर लग जाएंगे। तो हाइड्रोफिलिक कौन सा था, ये वाला, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर रहेगा। अब क्या होगा, जब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिट बन जाएंगे, जब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे यूनिट बन जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में एग्रीगेट नहीं होंगे, आपस में जुड़ के फिर बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं वो नहीं बनाएंगे। अब इन पे जो है इंजाइम एक्ट करता है, जैसे लाइपेज, तो लाइपेज अब एक्ट करेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब ये इसको क्या करेगा कि ट्राइग्लिसराइड में, या फिर जैसे ट्राइग्लिसराइड तो डाइग्लिसराइड में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ऐसे चेंज करेगा। लेकिन क्या होता है, जब ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, देन अगेन ये स्टार्ट कर देते हैं एग्रीगेट होना। तो अब क्या किया जाता है कि इन सबको, सॉरी, ये सब जो है डाइजेशन को हैम्पर करते हैं, इसलिए इनको जो है टेम्पररी स्टोर किया जाता है। जो फ्री फैटी एसिड है कुछ हद तक अब्जॉर्व हो जाता है, जैसे इंटेस्टाइन है, तो उसके बाद ये ब्लड वेसल है, तो ये जो फैटी एसिड यहाँ पे बना, ग्लिसरॉल बना, ये तो अब्जॉर्व हो गया, लेकिन कुछ अब्जॉर्व नहीं हो पाता, हिंडर करता है। तो उसको जो है माइसिल नाम का, माइसिल सुन रखा है, माइसिल भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रो, जैसे हमने कोई खाना खाया तो खाने में क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन भी होंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन प्लस फैटी एसिड्स प्लस, और क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे हैं, ये सारे कोर बना लेते हैं। कोर समझते हो, सेंटर का रीजन, और जो बाइल साल्ट्स हैं वो फिर से ये बाहर का रीजन बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, ऐसे करके फॉस्फोलिपिड्स भी लग जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसिल। माइसिल का काम क्या है, ये जाता है ब्रश बॉर्डर के पास, ब्रश बॉर्डर के पास जाता है और इनको बोलता है कि भैया आप अपना फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड ले लो, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड ले लो। कुछ समझ में आया जी माइसिल क्या होता है, माइसिल क्या होता है, यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। देखो, fatty acids and glycerol being insoluble cannot be absorbed into blood. They are small droplet micelles which intestine mucosa. They are reformed into very small protein coated कभी। तो देखो ये जो है
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ पे भी दिखाया गया है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड माइसिल से आए। माइसिल में क्या है, छोटे छोटे फैटी एसिड जैसे मोनोग्लिसराइड है। फैटी एसिड्स जो हैं वो भी होंगे, फैटी एसिड्स जो हैं वो सिंपली अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन से भी। ओके, अब ये माइसिल जो है इनको अपने फैटी एसिड भी दे देता है, मोनोग्लिसराइड भी दे देता है और बोलता है कि भैया तुम लोग जाओ। अब ये अंदर जाके क्या करते हैं, अंदर जाके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है कि इसके अंदर जाते हैं, जैसे ये मानो मोनोग्लिसराइड गया, दिस इज अ मोनोग्लिसराइड राइट, और दो फैटी एसिड्स इसको ऐसे ऐसे मिल गए। अब ये इन दोनों को ज्वाइन करके फिर से ट्राइग्लिसराइड बना लेता है, ऐसे ऐसे करके ट्राइग्लिसराइड बना लिया। अब ये ट्राइग्लिसराइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जब जो गोल्गी अपरेटस है वो इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग लगा देता है, ऐसे करके प्रोटीन की कवरिंग लगा देता है। अब बोलता है कि भाई तू जा, गो, कहाँ जाना है। अब इस स्ट्रक्चर को जिसमें प्रोटीन कवरिंग और उसके अंदर एक जो है ट्राइग्लिसराइड है, इसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। अब देखो ये काइलोमाइक्रोन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये जो है ये ब्लड वेसल में जा नहीं सकता, तो ब्लड वेसल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में नहीं जा सकता है, तो दिस गोज टू लैक्टियल। लैक्टियल क्या है, लिम्फ वेसल है। और जब ये लैक्टियल में जाता है तो जो लिम्फ लिम्फ होता है, लिम्फ फ्लूइड है, वो बहुत ही वाइट हो जाता है, क्योंकि ये वाइट ऐसे जैसे सोप सोल्यूशन होती है वैसे हो जाता है, तो उस सोल्यूशन को या उस लिक्विड को हम बोल देते हैं काइल। तो काइल समझ में आया, काइलोमाइक्रोन लेडन लिम्फ इज कॉल्ड काइल। आई होप इट्स क्लियर। ये देखो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होगा तो सिंपल डिफ्यूजन से चला जाएगा, लेकिन जो माइसिल्स हैं, माइसिल क्या करते हैं, अपना मोनोग्लिसराइड जो भी इसने स्टोर कर रखा है, जैसे ये इसने शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है वो कर रखा है और ये जो है मोनोग्लिसराइड, तो ये ब्रश बॉर्डर को दे देता है कि भाई तू ले ले। अब ये अंदर जाता है तो अंदर जाके यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसके अंदर चले जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनको ट्राइग्लिसराइड में चेंज किया जाता है। देन जो गोल्गी अपरेटस है वो क्या करता है, इसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग लगा देता है, प्रोटीन की कवरिंग के बाद इसको जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, सेल से होता है ना एक्सोसाइटोसिस, जैसे ये सेल है, इसके अंदर एक कंपोनेंट है, तो ऐसे कर इसके अंदर ये कंपोनेंट है, तो सेल ऐसे करके इस कंपोनेंट को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि भाई तू जा, तो ये लिम्फ वेसल में चला जाता है राइट। या तो ये है कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल पहले माइसिल में बनते हैं, माइसिल में म्यूकोसा के पास जाता है, ये सेल की लेयर म्यूकोसा की ही तो है ना, म्यूकोसा के पास जाता है तो वहाँ पे फैट कोटेड ग्लोब्यूल्स होते हैं जिनको काइलोमाइक्रोन्स, और उनको लिम्फ वेसल कौन सी, ये वाली बीच में, ये जो दिख रही है ना इसमें चला जाता है, इसको बोलते हैं लैक्टियल। साइड पे क्या है, ये वेन है और ये आर्टरी है या आर्टीरियोल कह लो। ओके, और ये जो है ये है एपिथेलियल सेल्स, ये क्या विलाई का स्ट्रक्चर है। ओके, और द लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली लीज द, हाँ लिम्फ जो है बाद में कनेक्शन करके कहीं से, तो लिम्फ में का जो फ्लूइड है वो ब्लड में ही मिलता है। तो ये है हमारे डाइजेशन ऑफ फैट्स। आई होप इट्स क्लियर। डाइजेशन ऑफ फैट्स में क्या पड़ा, फैट्स की डाइजेशन में मेन रोल है पैंक्रियाटिक लाइपेज का। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में या फिर स्मॉल चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये फैटी एसिड्स वही है, ओके, और ग्लिसरॉल में। तो अब कुछ फैटी एसिड्स जो हैं वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब बाइल सेल्स का काम क्या है, बाइल सेल के दो काम है। पहला है कि बाइल सेल जो है हेल्प करते हैं इनके मल्सिफिकेशन में, इन सबको जो छोटे छोटे टूट जाते हैं तो इन पे भी ये दोबारा जो एग्रीगेट ना हो, इसलिए उनके अराउंड जो है उनके अराउंड एक कवरिंग सी बना लेते हैं, जैसे हमने बात करी थी इसकी। उसके अराउंड ये जो है ये है हमारा छोटा फैट पॉलिक्यूल, इसके अराउंड ये कवरिंग बना लेते हैं ताकि ये दूसरा पार्टिकल जो है और ये जो है ये जुड़े ना। अब इसके ऊपर इंजाइम एक्ट करता है लाइपेज, और इसको छोटे छोटे जो भी अपने मोनोग्लिसराइड है या फैटी एसिड है
ग्लिसरॉल उसमें चेंज करता है। अब ये जो है हिंडर करते हैं डाइजेशन को। तो इन सबको जो है आधे तो फ्रीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ जो बाकी होते हैं उनको माइक्रोन काइलो माइक्रोन में ऐसे सॉरी माइसिल की फॉर्म में बना लिया जाता है, जिसमें बीच में कोर में होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, और साइड पे होते हैं ये हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स जिसमें बाइल साल्ट्स और फॉस्फोलिपिड्स आते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसिल। माइसिल जाता है ब्रश बॉर्डर के पास, ब्रश बॉर्डर को बोलता है भाई तो अपने फैटी एसिड्स ले ले, ग्लिसरॉल जो भी मैंने इकट्ठा कर रखा है वो ले ले। अब ये वो जब जाते हैं सेल के पास तो सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उनको अलो करता है कि तुम जुड़ो और ट्राइग्लिसराइड बनाओ, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की जरूरत है। अब ट्राइग्लिसराइड जो है वो बन तो गई, अब उसके अराउंड जो है गोल्गी अपरेटस जो है वो प्रोटीन की कवरिंग लगा देता है, प्रोटेक्शन दे देता है कि तुम्हें जाना है लिम्फ में, तुम्हें चाहिए प्रोटेक्शन। तो वो क्या करता है कि उसके अराउंड प्रोटीन की कवरिंग लगा देता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन सेल से बाहर निकलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस और ब्लड लिम्फ में जाता है, ब्लड में नहीं जाता। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, कैन नॉट क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द आर्टरी और वेन ऑफ द ब्लड वेसल, सो इट गोज टू द लिम्फ वेसल। इस तरह से फैट डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब एनसीईआरटी में ये दे रखा है टेबल सा कि आपको कैसे कैसे किस एरिया में एब्जॉर्प्शन होता है ये याद करना पड़ेगा। जैसे माउथ में कुछ ड्रग्स होते हैं जो म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं बस, और लोअर साइड ऑफ टंग पे सिर्फ ड्रग्स का नाम दिया जाए, सर्टन ड्रग्स। ठीक है, तो माउथ में क्या है, सर्टन ड्रग्स। स्टमक में क्या है, स्टमक में थोड़ा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स द डाइजेशन इज कंप्लीटेड। तभी तो शराब भी क्या होते हैं जल्दी चढ़ती है ना, तो हाँ स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाती है एब्जॉर्प्शन, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने की जरूरत नहीं, यहीं से या चढ़ जाएगी जब स्टमक में जाएगा। सो ये भी है। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सबकी एब्जॉर्प्शन होगी, जितने लिख सकते हो लिख लो। लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी है बचा बुचा वो एब्जॉर्ब होता है, कुछ मिनरल्स जैसे विटामिन मिनरल ये होते हैं, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन याद क्या रहना, माउथ में क्या है, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स, स्टमक में दारू अल्कोहल, पानी तो यहाँ भी अब्जॉर्ब होगा, राइट। पानी दो ही, पानी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्ब होता है, स्टमक में भी होता है, माउथ में नहीं हो रहा, माउथ में। ओके, सो अल्कोहल और कुछ सिंपल शुगर। स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें तो सब कुछ डाल दो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड ये सब अब्जॉर्ब होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी, कुछ ड्रग्स और मिनरल्स, आयरन ये सब। So with this we complete our video. We have done the digestion and absorption part. इसके बाद digestion के बाद जब ये खाना जो है जैसे ये ग्लूकोज है, अब ये ब्लड के थ्रू जब सेल में जाएगा तो सेल के अंदर जाके जो जाएगा ये इस प्रोसेस को बोलते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन इस चैप्टर में यानी चैप्टर का पार्ट ही था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द डाइजेशन digestive system is controlled, how is it controlled, what are the nervous and hormonal controls of this, and what are the various disorders associated with this. So if you like this video, don't forget to share it and subscribe it. Thank you for watching.